Okay, good morning, students. Do you know about me, myself? Who am I? No. Okay, fine. So, myself, Hussain, and I'm just a little 1 to 2 years elder than you, that's it. So, don't go on my grey hair. I'm also quite young. I'll just give you an introduction once it starts. I just want to understand from what are you guys doing currently, or you have just passed out? Hussain sir, if you can speak in Hindi, it would be great. If you can speak in Hindi, then it would be great. Okay, fine, चलेगा, ठीक है. So, sorry. गुड मॉर्निंग. मैं जानना चाहता हूँ आप लोग में से हर कोई मतलब एसएससी एग्ज़ाम अभी अपीयर किया है, पास्ड आउट हो गया है? एवरीवन इज पास्ड आउट फ्रॉम एसएससी? ओके. एंड रिजल्ट्स भी आउट हो गए होंगे ऑफ कोर्स. सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज हियर? कोई बताएगा? अपना परसेंटेज बताएगा? 86. एनीवन मोर देन? एसएससी के एसएससी? एसएससी. ओके. एनीवन मोर देन 86? एचएससी में कोई है 86 के ऊपर? 80? 89.64 एचएससी. HSC. Okay. वाओ, congrats. Anyone 35%? 40? Yeah, we have some people in 40s. 42%. Okay. We Anyone? have a group of 10th and 12th. 10th and 12th. Okay. Anyone below 42? So, no need to worry. You can also pursue the career in digital marketing. So there is no percentage barrier like any other careers or any other, professions you want to rope in. So okay, we'll start from here. Okay, acha, once I tell you then. Okay, so our topic for today is how to start a career in digital marketing. Yeah, next. So this is a little bit about myself. How old are you, everyone over here? 17, 18, right? Yes. Okay. So I started my career in digital marketing when I was 20. So right now I am 40. So I have 2 decades of experience in digital marketing. So I started my career in digital marketing before Facebook. So Facebook was launched in 2007 and I started my career in 2005. So yeah, I have been working all my life, in multinational companies. I've worked in Google, I've worked in 123 Greetings and many other brands. In 2023, I started my own company, which is called as 366 Digitex. I did my BMS, which is Bachelor in Management Studies in Advertising and Marketing. And then I pursued my MBA in Advertising and Mass Communication. After that, it was all digital from there onwards. I wanted to choose advertising as a field, but to be very honest, advertising involves a lot of, sorry again I'm continuing in English. So हाँ, मुझे advertising choose करना था, but the thing is advertising में ऐसा था कि मतलब काफ़ी हायरार्की थी. मतलब मुझे उतना स्ट्रगल नहीं करना था, to be very honest. So मेरा पहला जॉब ही I started my career as a team leader when I was 21. So because मुझे नहीं चाहिए था कि वही वो जूनियर और वो फ्रीलांसर और वो इंटर्न और ट्रेनी का वो जर्नी मैं चढ़ते जाऊं एंड देयर आर 10 बॉसेस ओवर मी, 10 लोग मेरे को कमांड कर रहे हैं. आई डिडंट वांटेड दैट. So I started my first job as a team leader itself by God's grace, and and then there was no looking back. I finished as a director and then I started my company. Yeah, next. So these are some of the achievements what I have achieved. My recent achievement is I was nominated by Economic Times. Economic Times, I'm sure आप लोग सब पढ़ते ही होंगे. So I was nominated as the top 10 influential leaders in the country in 2024, last year.
Then I was nominated about Forbes 200 in India, and many other awards and accolades I got year after year. Next. So how many of you like or use social media on daily basis? मतलब आप लोग कौन कौन यूज करता है सोशल मीडिया ऑन डेली बेसिस? कैन आई हैव सम हैंड्स रेज्ड? कोई हाथ उठाएगा? व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हो? करते हो ना? इंस्टाग्राम तो यूज़ करते ही हो। अच्छा, व्हाट डू यू लाइक? क्या क्या अच्छा लगता है आपको सोशल मीडिया में? अच्छा, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। ओके, आपको? रील देखना बहुत पसंद है ना आप लोग को? स्नैपचैट किसी को नहीं पसंद है? हाँ, तो फिर स्नैपचैट तो मतलब आप लोगों का फेवरेट होना चाहिए सबसे ऊपर। एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम? किसी और को और कुछ अच्छा लगता है? यूट्यूब, ओके। शॉर्ट्स देखना पसंद है, वेरी गुड। एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? गूगल किसी को नहीं पसंद है? गूगल पे कुछ सर्च कर लूँ, कुछ नॉलेजेबल देख लूँ? नहीं, रील्स देखना है, शॉर्ट्स देखना है। सो चलो कोई बात नहीं, बट आई थिंक सो सोशल मीडिया के दो पहलू हैं। आई थिंक सो एक अच्छा भी है और बुराई भी है। आई थिंक सो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। सो वी हैव टू, हम लोगों को वो चीज़ें अडेप्ट करनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि देखो क्या है आज बेसिकली ऑफ कोर्स यू गाइस आर यंग, और ऐसा नहीं कि हम लोग ने भी अपना टाइम एंजॉय नहीं किया, हम लोग ने भी मस्ती नहीं की। आई वॉज द, आई वुड से नॉटीएस्ट in my college, in the KC, in my KC college and wherever I have studied. But I have made sure I have respected my teachers and always taken most of the knowledge from what I can learn, and so I owe this to my teachers where I have studied and gained education. So okay, next. सो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग को स्टडी करने के लिए। एनीवन नो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? किसी को मालूम है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग? करना सबको है। एवरीवन वांट्स टू डू और परस्यू अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग? या प्लीज़। इसमें करियर नहीं करना है, बट बेसिक पता है कि डिजिटल मार्केटिंग मीन्स कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को प्रमोट करते हैं या उसके बारे में बताते हैं। बिल्कुल, दिस इज़ राइट, आई वुड से पार्शियली राइट। और कोई है जो जानता है या तो बताना चाहता है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग? पहले तो एक बात बता दूंगा, ये जो हर एक में एक फियर होता है कि अरे मैं बोलूँगा तो लोग हंसेंगे, वो क्या वो सोचेगा। नेवर फील दैट, नो क्वेश्चन इज़ अ स्टूपिड क्वेश्चन, नो आंसर इज़ अ इडियोटिक आंसर। सो जस्ट फील फ्री और बोलो और पूछो, बिकॉज दिस इज़ द एज। आज भी हम लोग पूछ रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं एट दिस एज। सो आई थिंक सो दिस इज़ योर एज टू लर्न। सो डोंट फील, मतलब शर्माओ मत, जस्ट ओपन अप। या प्लीज़ जी। ऑलवेज स्टैंड एंड आंसर, दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस एंड हैबिट। या जी, राइट। सो ये भी एक दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आई विल गिव यू कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो बेसिकली आप कोई भी एक प्रोडक्ट हो या तो कोई भी एक सर्विस हो। प्रोडक्ट मतलब आई एम सेलिंग मोबाइल फोन्स फॉर एग्जाम्पल, और आई एम सेलिंग माई डिजिटल मार्केटिंग विच इज़ अ सर्विस। सो मैं एक प्रोडक्ट या तो सर्विस को मैं बेच रहा हूँ या तो उसको प्रमोट कर रहा हूँ फॉर माई यूजर्स, फॉर माई विजिटर्स, फॉर माई कस्टमर्स। दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, एंड देर आर डिफरेंट स्टेप्स एंड टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो कोई बताना चाहेगा? किसी को मालूम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग?
लाइक डिजिटल मार्केटिंग इज एन अम्ब्रेला, सो उसके अंदर क्या क्या आता है, एनीवन वांट्स टू, हाँ वहाँ पे देख के भी बोल सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पे प्री क्लिक एडवर्टाइजिंग, आपको मालूम है आपको और क्या चलेगा। हाँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग मीन्स हमको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करना होगा मे बी। सोशल मीडिया के चैनल्स आपको मालूम है क्या क्या चैनल्स होते हैं सोशल मीडिया के? मैं बताता हूँ आपको। सो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। विल गो स्टेप बाय स्टेप। सो व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? आप लोग गूगल पे सर्च वर्च करते हो कुछ, कि खाली इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो? गूगल पे करते हो, गुड। सो गूगल पे जब भी आप सर्च करोगे दो पार्ट्स हमेशा दिखते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। एक होता है स्पॉन्सर्ड या तो ऐड दिखता है आपको, ओके, और एक दिखता है जो नॉर्मल सर्च जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सर्च, ओके। सो ऑर्गेनिक सर्च को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, विच इज SEO। और जो स्पॉन्सर्ड और जो ऐड या तो कुछ भी दिखता है ना ऐसा, उसको बोलते हैं हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM बोलते हैं। जो पेपर क्लिक भी होता है, जो गूगल एडवर्ड्स भी होता है, सो वो हम लोग आगे आगे सीखेंगे। बट अभी इतना दिमाग पे लोड मत लो, मैं आपको बेसिक दिखाऊंगा, बिकॉज अगर इतना समझाऊंगा तो तुम लोग बोलोगे भाई मुझे अभी नहीं करना है डिजिटल मार्केटिंग, 10 साल बाद देखेंगे, ठीक है। सो SEO इज ऑर्गेनिक सर्च, और जो पेपर क्लिक होता है या तो पेड एडवर्टाइजिंग जिसको बोलते हैं, दैट इज SEM, विच इज सर्च इंजन मार्केटिंग, ओके। पेपर क्लिक आ गया, जैसे कि पेपर क्लिक क्या होता है कि वेन एवर यू क्लिक ऑन एनी एड तो ही आपको चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड पेपर क्लिक। जैसे कि आपने देखा कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोला बाय चीप मोबाइल फोन्स ऑनलाइन एट Amazon, तो ये एड पे अगर आपने क्लिक करा तो ही आपको चार्ज होगा, सो दैट इज कॉल्ड पेपर क्लिक। इतना क्लियर है सबको? ओके, कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज आस्क मी। देन कम सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो उन्होंने बताया कि भाई सोशल मीडिया पे हम लोग प्रमोट करते हैं। अभी सोशल मीडिया के जो चैनल्स होते हैं, या तो मैं बोलूँगा सोशल मीडिया के टाइप्स होते हैं, वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, ट्विटर किसी ने यूज़ किया है जो अभी एक्स है? नहीं, ट्विटर में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। स्टार्ट यूजिंग ट्विटर। ट्विटर इज़ वेरी नॉलेजेबल। ट्विटर इज़ काइंड ऑफ अ माइक्रो ब्लॉग। ब्लॉगिंग किसी को पसंद है? कोई लिखता है? एनीवन वांट्स लाइक्स टू राइट? अच्छा लगता है लिखना? नहीं, खाली पढ़ने, ठीक है। सो ट्राई राइटिंग। आई थिंक सो राइटिंग इज़ द बेस्ट हैबिट। मैं भी एज ए स्टूडेंट था, मुझे पेन से लिखने बहुत बोर होता था, बट आई यूज टू लव राइट ऑन कंप्यूटर्स एंड सो एटलीस्ट टाइप राइट, तो उससे आपका आगे का जर्नी इजी होगा। एंड रीड लॉट ऑफ ब्लॉग्स, इंफॉर्मेशन, मतलब ब्लॉग्स मतलब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ बॉम्बे टाइम्स और वो फिल्मी गन और विरल बयानी, वो सब नहीं है। नॉर्मल जो अच्छा इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स होते हैं वो पढ़ो। So that is social media marketing. Yeah, please. Can you explain blogs elaboratively, because I don't think they know what is blog. Blogs किसी को मालूम है क्या होता है, या तो anyone understand? Yeah, please. ब्लॉग किसी चीज़ के बारे में लिखा जाता है, उसके Okay, partially right हो। मतलब blogs ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर टॉपिक्स। अभी कोई भी अगर मैं एक प्रोडक्ट या तो सर्विस लूँगा, जैसे कि अगर मैं मेरी सर्विस ही लूँगा विच इज़ डिजिटल मार्केटिंग, सो उसके अंदर ब्लॉग्स क्या होंगे? लाइक फॉर एग्जाम्पल 5 करियर्स टू चूज़ इन सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन डिजिटल मार्केटिंग, ये ब्लॉग हो गया। सो इसके ऊपर देयर विल बी एन आर्टिकल, ऑनलाइन आर्टिकल होगा, वो हम पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर वीडियो होगा जिसको ब्लॉग बोलते हैं। जो लिखा हुआ रहता है उसको ब्लॉग बोलते हैं, जिसको आप देख सकते हो उसको ब्लॉग बोलते हैं, विच इज़ वीडियो, जो आप देखते होगे। फेसबुक को देखते हो ना सब? नहीं, फेसबुक को नहीं देखते हो, अच्छा है, मत देखो। और कोई ब्लॉग्स देखते हो किसी के? फूड ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स, हाँ बस वो देखते होंगे आप सब लोग, आई एम श्योर। कर्ली टेल्स, हाँ बस, सो कर्ली टेल इज़ अ ब्लॉग, सो यू नो दैट इज़ अ फूड ब्लॉग। सो जो वीडियो ब्लॉग्स होते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉग्स,
एंड ब्लॉग्स आर नॉर्मली रिटन कंटेंट जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है, उसको आप सेव भी कर सकते हो, बुकमार्क भी कर सकते हो. सो देर आर मेनी टाइप्स इन दैट. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी ब्लॉग एंड व्लॉग का? ओके. सो ये भी एक पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ब्लॉग व्लॉग. सो चैनल्स मैं बता रहा था जैसे कि पिंटरेस्ट हो गया, पिंटरेस्ट भी है. पिंटरेस्ट को यूज़ करते हैं. सो Pinterest इज़ अगेन अ वेरी गुड आई थिंक सो प्लेटफॉर्म, चैनल है जो विच विल गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो उस पर भी अपना अकाउंट. लिंक्डइन, एनीवन हैज़ एन अकाउंट ऑन लिंक्डइन? वेरी गुड. आई थिंक सो लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस. एवरीवन हियर ट्राइंग टू मेक अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग या किसी में भी, you have to have an account on LinkedIn and be active on LinkedIn because that will grab your eyeballs. मैं अभी आज मैं LinkedIn यूज़ कर रहा हूँ आई थिंक सो ऑलमोस्ट 16 years से. I was among the very first I would say few hundreds in India who started using LinkedIn, you know. So I have a very good profile. आप लोग मेरे को कनेक्ट भी कर सकते हो. इफ़ यू वांट एनी क्वेश्चंस डाउट्स आई विल आंसर यू देयर. मेरा खुद का न्यूज़लेटर चलता है लिंक्डइन में विच इज़ वेरी फेमस. आई विल शेयर दैट लिंक. आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हो. सो स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन राइट नाउ बिकॉज दैट इज़ अ वेरी अर्ली एज फॉर यू. बट आप एक हायर एजुकेशन में जाओगे, देन यू विल बी बेसिकली वर्किंग एज एन इंटर्न ट्रेनी, तब आपको उसका वैल्यू समझ में आएगा, यू नो. सो स्टार्ट यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम भी यूज़ करो बट वो कम यूज़ करो, लिंक्डइन ज़्यादा यूज़ करो और एक्स यूज़ करो. दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. या अच्छा, देन कम्स कंटेंट मार्केटिंग. मतलब ट्विटर. एक्स मतलब ट्विटर. हाँ, एक्स मतलब आपका एक्स नहीं है मतलब सो एक्स मीन्स ट्विटर विच वॉज अर्लियर ट्विटर. वो बर्ड का जो आइकन आता है ना, वो अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं जाने का. अभी अपना कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई है. वो सब जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद. अभी कुछ नहीं. क्या सोशल मीडिया में हाँ. सो या नेक्स्ट हाँ, कंटेंट मार्केटिंग. कंटेंट मार्केटिंग अगेन ब्लॉग्स जो मैंने बताया, एनीथिंग रिलेटेड टू कंटेंट लाइक टेक्स्ट हो, वीडियो हो, जिफ्स हो, मीम्स हो. मीम्स जो देखते हैं आप लोग यू नो ऑनलाइन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग. सो मीम्स अच्छे हो बुरे हो, बट अगेन यू नो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ क्रिएटिविटी. इट रिक्वायर्स यू नो ऑन द स्पॉट मार्केटिंग, ऑन द स्पॉट आइडिया. सो भले से हम लोगों को लगता होगा कि यार ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बट अगेन यू नो मीम्स ऑल्सो, मीम्स आप लोग को मालूम है ना क्या है. इंस्टाग्राम देखते हो तो मीम्स तो मालूम ही ऑफ कोर्स. सो दैट ऑल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ क्रिएटिविटी. इट इज़ नॉट ईजी. सो ईमेल मार्केटिंग, आप लोगों को ईमेल्स आते होंगे अबाउट कॉलेजेस, कोर्सेज. सो दैट इज़ पार्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग. एक ईमेल का डेटाबेस होता है वेयर यू हैव योर टारगेट ऑडियंस ईमेल आईडीज़, और फिर उसके हिसाब से आप उनको ईमेल शूट करते हो फॉर एजुकेशन, फॉर बाइंग, फॉर शॉपिंग ऑनलाइन, फॉर फूड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो दैट इज़ पार्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग. एनालिटिक्स एंड डेटा इंसाइट्स, अभी मैं आपको वो बता नहीं सकता वरना आप लोगों को बहुत हैवी हो जाएगा वो. वी कैन टेक दिस इन पार्ट्स यू नो इन डिफरेंट सेशंस. सो मैं एक छोटा सा नटशेल में बता दूंगा. दैट इज़ यू नो एवरीथिंग व्हाट वी डू इज़ अबाउट डेटा. मीन्स मैंने आज एक ऐड रन किया फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. कितने यूज़र्स आए, कितने यूज़र्स ने उसको लाइक किया, कितने यूज़र्स ने फॉर्म भरा, कितना यूज़र्स इंटरेस्टेड है, दैट इज़ ऑल डेटा. सो दैट डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिक्स एंड डेटा इंसाइट्स. वो डिफरेंट टूल्स और यू नो देर आर डिफरेंट टूल्स एंड देन डिफरेंट वेबसाइट जिससे हम लोग वो कैप्चर कर सकते हैं सारा डेटा. दैट वी कैन लर्न इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज. बट अभी मैंने आपको एक इंसाइट दे दिया छोटा सा. इसमें कोई डाउट है? अगर इफ एनीवन हैज़ डाउट प्लीज़ आस्क ऑन दीज टॉपिक्स. इसका हम लोग टेस्ट लेंगे. तो किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो. जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो टेस्ट क्लियर करने के बाद ही या उसके बाद ही यहाँ से जाने का, वरना 11 बजे तक रात तक इधर ही. एनीवन हैज़ डाउट्स?
कोई बात नहीं, डाउट है कुछ? देर इज नो डाउट, देन देर इज गुड न्यूज. अच्छा, देर इज डाउट. पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, Yeah. मतलब हमको क्लिक करने के पहले पे करना पड़ेगा ऐसा कुछ? Whenever you click, you will be get paid. मतलब फिर वो तुमको बिल हो जाएगा वो. आई एम एज अ कंपनी, आई एम रनिंग एन एड. अगर यू एज अ यूजर यू क्लिक ऑन इट तो मुझे उसका चार्ज आएगा, वरना मुझे चार्ज नहीं आएगा. So that is pay per click advertising. Means as a user you are coming, you are seeing my ad, it is okay. But if you click on that ad, then उसका 1 रुपया, 1.5 रुपया, 5 रुपया, whatever I set the bid, उसके अंदर bidding सेट करना होता है. So फिर उतना चार्ज मुझे आएगा एज अ यूजर. आपने क्लिक करा बट पे मैं करूंगा एज अ कंपनी. इसमें लॉस तो आपका होगा ना ज़्यादा? लॉस मेरा हुआ बट मेरे यूजर्स को वो दिख रहा है ना मेरा एड. दे आर कमिंग टू मी. उन्होंने वो चीज़ खरीदा, बाय नहीं किया या कुछ, बट अगर बाय कर दिया तो बट देयर इज अ लॉट्स ऑफ चांसेस कि सिर्फ वो लोग देख रहे हैं. आई नो, बट देर आर चांसेस. बट वही अब कंपनीज हैव टू टेक चांस. वो 1000 क्लिक में एक बाय आ सकता है. तो इसमें प्रॉफिट कंपनी को ज़्यादा हो रहा है या मतलब लॉस हो जाएगा? It is, see, this is, you can't term it as loss. This is your indirect promotion also. अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा वाई डिजिटल मार्केटिंग एंड वाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू. यू कैन सेट नो. आज अगर आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया में फर्स्ट पेज पे एडवर्टीजमेंट देखते हो ना, कभी एप्पल का आता है, कभी कंट्री डिलाइट का आता है. सो आप लोगों को मालूम है वो फर्स्ट पेज पे एडवर्टीजमेंट का कितना चार्ज है टाइम्स ऑफ इंडिया का? अंदाजा अप्रोक्सीमेटली फॉर 24 आवर्स, मतलब 1 डे. हाउ मच दे चार्ज? 60 lakhs फॉर फर्स्ट पेज. 60 lakhs. न्यूज़पेपर कितना देर पढ़ते हैं हम लोग? 5 मिनट. बॉम्बे टाइम्स आधा घंटा. बॉम्बे टाइम्स ज़्यादा पढ़ते होंगे, अंदर वाले पेजेस जहाँ पे सेलिब्रिटीज, पेज 3 वो सब. बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया से अपने को लेना देना ही नहीं है, राइट? सो द थिंग इज एवरेज टाइम मैं बता रहा हूँ, एवरेज टाइम बाय अ यूज़र एज पर इंडियन यूज़र इज 5 minutes फॉर द कंप्लीट न्यूज़पेपर. ओके, अब वो न्यूज़पेपर में से भी फ्रंट पेज इज लेस देन 30 seconds. ओके, अब वो 30 seconds के लिए अ कंपनी इज पेइंग 60 lakh rupees फॉर योर आंसर टू योर क्वेश्चन. आपने बोला ना अरे यार ये लॉस हो जाएगा सोशल मीडिया में. सो कैन यू अंडरस्टैंड, फॉर 30 seconds, लेस देन 30 seconds, यू आर पेइंग 60 lakhs फॉर ओनली 24 hours. वो भी 24 आवर्स में न्यूज़पेपर आपके टेबल या तो डेस्क पे कितना रहेगा? हार्डली 1-2 घंटा. उसके बाद में तुम्हारा काम की चीज़ें रहेंगे. अगर घर रहेगा तो घर में भी न्यूज़पेपर फिर वो साइड में चले जाता है. स्टार्ट में मॉर्निंग में रहेगा ऑन योर डाइनिंग टेबल. आपके पास कोई डेटा है हाउ मेनी पीपल हैव वॉच्ड इन मुंबई योर एड? नो डेटा. अनटिल अनलेस दे विल कॉल. वो भी कॉल करके वो ये नहीं बोलेगा हाँ सर मैंने आपका टाइम्स ऑफ इंडिया पे ऐड देख रहा हूँ और मैं कॉल कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स. सो 60 lakhs देने के बावजूद यू डोंट हैव एनी डेटा, यू डोंट हैव जेंडर, यू डोंट हैव वो लोग, वो पर्सन तुम्हारी ऐड में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं. कोई बच्चा देख रहा है, कोई 80 साल का बूढ़ा देख रहा है. यू डोंट हैव दैट एनी डेटा. बट विद डिजिटल मार्केटिंग, ओके, इफ यू पे मी 10 lakh rupees for 1 year, I will give you a package like how many people have seen your ad, how many people have liked your ad, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, मेल है, फीमेल है, सारे डेमोग्राफिक्स, सारा इंसाइट, सारा डेटा पूरे 1 साल के लिए दूंगा. तो चीप क्या हुआ? डिजिटल मार्केटिंग हुआ कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग हुआ? 1 day for 24 hours you have paid 60 lakhs and after that 1 day 24 hours वो न्यूज़पेपर डस्टबिन में जा रहा है और रद्दी वाले के पास जा रहा है. एंड योर यू आर पेइंग मी 10 lakhs और वो 10 lakhs में मैंने 12 months का पूरा प्लान बना के आपको रीजन वाइज, स्टेट वाइज, लोकेशन वाइज, आपको लोकेशन स्पेसिफिक, जेंडर स्पेसिफिक आपको बता के दे दिया कि भाई ये लोग आपका ऐड देखेंगे. सो इज इट that beautiful and wonderful for a company? Of course, right? So that is the power of digital marketing. You have every data.
देयर इज मेल है, फीमेल है, एज, हर चीज़ का डेटा है आपके पास, एंड दैट डेटा इज पावर. नाउ यू गॉट, या प्लीज. आप सभी लोगों ने ईमेल बनाया था पहले लेक्चर में, पहले 2-3 लेक्चर में. उसमें यही सब डेटा मांगा जाता है. एज, नेम, कहाँ से हो, लोकेशन भी वो लोग फीड कर देते हैं. समझ में आया? ईमेल आईडीज़ में वो लोग क्यों मांग रहे हैं आपसे. यही सेम डेटा डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को मिलता है. हम जब आगे जाके एक्सेप्ट करते ना कंडीशंस, वो यही एक्सेप्ट करते कि हमारा डेटा थर्ड पार्टी को यूज़ में जाएगा. थर्ड पार्टी मतलब डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, जो हमारा डेटा समझ के उस हिसाब से ऐड टारगेट्स करती है. ठीक है. दे रिसेंटली क्रिएटेड देयर ईमेल आईडीज इन माइक्रोसॉफ्ट एंड जीमेल. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन, कुछ और डाउट्स है ये टॉपिक के ऊपर तो मुझे पूछो, बिकॉज मैंने आपको अभी वो डिफरेंस भी बता दिया बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग. हाउ, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ चीप और एक्सपेंसिव, बट डिजिटल मार्केटिंग इज़ वैल्यू फॉर मनी. हम लोग सभी वैल्यू फॉर मनी देखते हो. आपने ये वॉच लिया होगा, आपने यही देखा होगा कि भाई ये वैल्यू फॉर मनी है, ये वाटर रेजिस्टेंट है, ये कितना साल चलेगी, राइट. वी ऑलवेज लुक इनटू दैट फीचर्स. मोबाइल लेते हैं आज हम लोग 10,000 का भी मोबाइल देखेंगे, हम लोग 10,000 सवाल पूछेंगे जाके मोबाइल कंपनी को कि भाई ये कितना चलेगा, वारंटी कितनी है, कितने सिम कार्ड है, कितना मेमोरी है, फलाना डिमकाना, राइट. सो दैट इज़ हाउ social media will answer, digital marketing will answer all your requirements, all your needs. So sky is the limit. यहाँ पे न्यूज़पेपर देख के कितने लोगों ने देखा, 60 लाख रुपए अपने खर्चा किया, 6 लोगों ने भी देखा कि नहीं आपके पास कोई डेटा नहीं. आपको कॉल आया तो ठीक, वरना इट इज़ ऑफ नो यूज़. बट डिजिटल मार्केटिंग में जैसा उन्होंने बताया, क्लिक, if anyone clicks also you will get the data कि who has clicked. So that is the power of digital marketing. ठीक है. Anyone has doubt, questions? Next. Instagram, Facebook, Snapchat. सुबह से आप लोग ने यूज़ किया होगा, रात में यूज़ किया होगा. कोई ऐसा एक ऐड या तो कोई ऐसा प्रोडक्ट याद आ रहा है आपको जो आपने देखा होगा? स्क्रॉल करते करते तो मतलब उंगलियां थक जाती होगी, मगर आपका मोबाइल नहीं थकता होगा. सो ऐसा कुछ देखा है आपने आज या तो कल रात में, रिसेंटली? एनी ऐड, एनी प्रोडक्ट? कुछ भी याद नहीं आ रहा है, खाली सेलिब्रिटी, खाली मेकअप दिख रहा है बस, है ना. कोई भी प्रोडक्ट याद नहीं आ रहा है आपको? नहीं, आपने भी प्रोडक्ट नहीं देखा, एक्ट्रेसेस को देख रहे थे. हाँ, देखें कौन सा प्रोडक्ट? एक्सेल के बारे में आया था. किसके बारे में? एक्सेल PowerPoint के बारे में वो ऐड आ रहा था. ओके, एक्सेल वन, बस वही दिखा, बाकी सब एक्ट्रेसेस, मॉडल्स वही देख रहे थे. हाँ हाँ, अभी बोल रहे थे. गुड. बी ऑनेस्ट. या एनीवन एल्स? गर्ल्स, मेकअप, फ्रेग्रेंस, या प्लीज. सर मैंने ऐड देखा, उसमें वो यूनिवर्सिटी की क्लासेस के एडमिशन अपने कैंपस के बारे में उस ऐड में बताया जा रहा था. मतलब कि आप कौन सा कॉलेज का था, कौन सा यूनिवर्सिटी का था? COEP और अदर एनी कॉलेज. चलो ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी का तो दिखा, उसकी तरह मॉडल्स का नहीं दिखा आपको ऐड. थैंक्स. एनीवन एल्स? किसी को कुछ भी नहीं दिखा एड्स? या अच्छा, ओके, गुड. सो ये एड्स हम लोगों को क्यों दिखते हैं मालूम है आपको? वाई वी सी दीज एड्स और ब्रांड्स? हम लोग उस कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारा सर्च किए रहते हैं. मे बी Exactly right. From your choice and preferences on search on the internet. इसीलिए हम लोगों को दिखते हैं. प्रॉब्ली उनको हीरोइंस ज़्यादा अच्छे लगती तो उनको वैसे ही एड्स दिखते होंगे, मॉडल्स और हीरोइंस. या एब्सोल्युटली राइट. डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट ही है ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वेयर बैठो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंसाइट्स, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. इट इज़ पार्ट ऑफ द इंटरनेट. तो क्या होता है कि
जब भी मैं कुछ सर्च करता हूँ एज अ यूज़र, आपका नाम क्या है? बुशरा। सो बुशरा फातिमा से रिलेटेड एवरीथिंग इज स्टोर्ड कि बुशरा फातिमा की एज क्या है, व्हाट इज़ हर लाइक्स प्रेफरेंसेस, व्हाट इज़ शी स्टडिंग, सारा डेटा है उन लोगों के पास। द इंटरनेट हैज़ एवरीथिंग, सो इट इज़ ऑल सिंक्रोनाइज, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आर सेट एंड एज पर दैट जो भी कंटेंट दिखेगा आपको आपकी चॉइस एंड प्रेफरेंस के हिसाब से दिखेगा। हाँ, स्कैम्स तो होते हैं। आपने कोई स्कैम किया है क्या? हुआ है आपके ऊपर स्कैम? वो होते हैं बिकॉज बेसिकली दे आर इंटरनेट इलिटरेट पीपल, ओके? तो दे डोंट अप्लाई ब्रेन्स, दे जस्ट गो विद द फ्लो। और ये जो लालच है, ग्रीड इज द मेन कॉज ऑफ स्कैम्स। मतलब भाई आप 1 रुपया लगाओगे तो आपको 4 रुपया मिलेगा, बाय वन गेट 2 फ्री। इसको लालच, ग्रीड बोलता है। तो जो भी स्कैम हुआ है लाइफ में, वर्ल्ड में, दैट बिकॉज ऑफ योर ग्रीड। इसलिए आई थिंक सो योर पीपल आर फ्रॉम ऑल रिलीजन, इन ऑल रिलीजन ग्रीड इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी वे। लालच जो है तुम्हारी, उसको हमेशा नीचे ही दबा के रखना। अगर वो लालच और तुम्हारा ग्रीड और तुम्हारी बॉन्ड ऊपर बढ़ जाएगी तो these scams happen. Next. So these are basically some of the free courses. आप लोग अभी you guys can enroll. These are free and paid courses. आप लोग screenshot ले सकते हो इसका and you can of course join these courses. बहुत सारे free हैं and I think so my daughter also cleared SSC this year. So थोड़ा सा उसको मई का महीना enjoy करने दूँगा, then जून से ये सारा सब स्टार्ट कर दूँगा। So you guys also can enroll these courses which are absolutely free और आपको एक स्टार्ट और एक बूस्ट मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग। आपको इंटरेस्ट अगर जाके बाद में then there is sky is the limit, there is unlimited courses, there is अभी तो PhD भी आ गई है। I myself is doing PhD, I don't get any time for doing PhD. My work and business I am so stuck. I am doing since COVID. आज 4-5 साल हुए अंदर से PhD का। तो ये हो गया clear? So I will recommend everyone, each of you, to start using free courses. There is lot of free courses. पैसा अभी मत वेस्ट करना अपने मॉम डैड का हार्ड मनी। यूज फ्री कोर्सेज। जब आपको इंटरेस्ट जानने लगे, जब आपको लगेगा कि हाँ मैं अभी बिगिनर लेवल मैंने पार कर लिया है, देन गो फॉर पेड कोर्सेज। फिर मैं आपको बताऊँगा क्या क्या पेड कोर्सेज करते हैं और कहाँ से करते हैं। बट राइट नाउ यूज दिस फ्री कोर्सेज का पूरा अनलिमिटेड थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज विच आर फ्री, थाउजेंड और अच्छे ऑन दी वेबसाइट्स। नेक्स्ट किसी ने आपको कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, कोई भी बेसिक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ भी नहीं किया, तो अगेन स्टार्ट डूइंग दैट। नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, I don't want to know, I don't know also, but it doesn't matter, okay? You are middle class, you are lower middle class, you are higher middle class, upper middle class, it doesn't matter. Education, knowledge gaining के लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। Internet is very powerful. Use that as your education tool. आप 1000 चीज़ें कर सकते हो और ये सब चीज़ें हैं, ये वंडर्स हैं जो मैं अपने जूनियर्स को, मैं अपने wherever I go for guest lecture, I tell this. आपका knowledge आपके कितना भी एरिया like an ocean, that will not never, you know, that will never ever give any example to you. आपने ट्रेनिंग कितना किया है, आपने हैंड ऑन एक्सपीरियंस कितना लिया है, that is important. आपका knowledge तो ocean के हिसाब से, अगर आपको experience नहीं है, what you will do? So if anyone wants to take a career in digital marketing,
pursue in future, contact me. I will give them internship, I will give them training. मैंने अपनी कंपनी खोलने का मेन मोटिव है. I also run an NGO. I am my so I was an NGO, Khidma Foundation, which is in South Bombay. So it is part of my probably NGO where I train people, I give them certificates because right now the need of the hour for any students of any class or training is basic experience because no company takes any freshers without experience. So I am that this is that gap between the companies and the freshers. So you all are welcome if you want to pursue a career in digital marketing. You can work as a trainee in my company. Under my leadership, I have trained, I think so more than 5,000, 6,000 students till now. So yeah, so you all are welcome to internships. Take up internships, कोई भी चीज़ की हो, but जहाँ पे आपको सीखने हैं, at this age also is okay. Part-time working. I'm not telling about to earn money. I'm just telling you, gain experience, आपको industry experience हो. So कोई भी internship part-time को मिली हो, 2 दिन, daily हो, daily you will learn a lot of things. I'm not telling you to fulfill your family needs, but for your own self. यहाँ पे सब I think so well to do family से होंगे. I'm sure and I wish you all good luck. But still, I was from a well-to-do family, but since FYDC, I was doing something or the other. I was not active. Until now, my family, my friends are brought up with me. Wherever I go on picnics or trips, I carry my tablets, laptops, phones. It is continuously raining. So, yeah, it is part of my life. Everyone has accepted that. So, yeah. Tools like Canva. Canva, everything likes to use. I think so use karo. Canva is again not the best of software, but yeah, you will learn something from Canva. Designing, videos, etc. अपना portfolio read करो, projects के अंदर, create your portfolio online. अगर आप creative हो तो Exactly क्या meaning है? networking is very important. Portfolio You know exactly English, आपको इंग्लिश आती हो, हिंदी आती हो, मराठी आती हो. Language is never a barrier. So what is the exact meaning of portfolio? Portfolio मतलब, for example, your anyone is good in design. तो आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट बना दिया, एक वेबसाइट डिजाइन बना दी, एक बैनर बना दिया. So that fills up as your portfolio. Anyone likes to write. तो आपने blog लिख दिया है, आपने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, आपने खुद का फूड ब्लॉग रिकॉर्ड कर दिया, वो पोर्टफोलियो हो गया. Which you are building on your personal level. ऐसा नहीं कि you will build your portfolio आप कहीं काम करके कर सकते हो, आपका individual भी कर सकते हो. Next, any doubts, questions on this slide? So मैंने अभी आपको सारा invite दे दिया और फ्री है. आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो, come to me for training, for internships. I have always welcomed students who really want to pursue career in digital marketing. They are now working in USA, UK, Canada, all my students who have worked under me. So I feel proud. Next. So yeah, next. So importance, मैं बता रहा था कि मतलब importance of जो certification और training और internship. So ये effect होता है कि you get a lot of knowledge from industry. जैसे कि for example start visiting आपके locality area में exhibitions भी होते हैं, expo होते हैं, technology expo, real estate expo. Start visiting that. I never sit home on Sundays or Saturdays also. आज जैसे क्या Saturday है, all my friends are sitting, but I've come here to be with you guys. So that is my passion.
Mahindra School of Business Management to MBA students to PhD students. Why? Because it is an institution. I am giving knowledge, and in exchange of that, I am doing network. I am creating my network bigger. So I make sure always in a month I meet 500 new people. That is my goal and agenda. So that is the reason I don't sit at home. I go in expos, exhibitions, events. I never stay at home on Saturday. So that is my passion. I'm president of Giants Group also. So tomorrow is my event. So kal bhi main busy hu, Sunday. So my family, my wife, everything will be like after me. So मैं उनको तो उठने के पहले ही बात करूँगा. That is how it is. Next. So this is the reason I was telling you guys to build up portfolio on LinkedIn, because it will be good for your professional networking. Okay. You will bring, you will probably आप लोग अपना एक personal brand build करो. Like for example, your name is Bushra Bhanu. People will try recognizing you on social media by Bushra Bhanu. So that is the reason you have to have a LinkedIn account and use as a personal brand. Make yourself a brand. Okay. So this is what all things you can do on LinkedIn with your own brand. Next. आपका नाम मैंने गूगल किया, आपने एंड सॉ कैप्चर आपने क्या लिखा है? But not your name. But if you Google my name, you will get at least 5,000 people from Google. So that is a brand. I got this. That's true. So there are videos, there are blogs, there are articles. एक नेगेटिव रिव्यू नहीं मिलेगा आपको ऑनलाइन. ऐसा नहीं कि मैंने काम किया उस पर, but you know the way you are, I have not done any PR for myself. Like good PR कि भाई जैसे politicians करते हैं, जो भी bad review है उसको निकाल दो. I don't do. So that is because I'm a good guy. That's why. Just like what I've told, you know, learning is not only reading or listening, attend webinars, attend seminars. आज भी I am doing the same things I have been doing 2 decades ago. जितना मैं तुम्हारे बिना करता था उस टाइम से. I am attending webinars, I am attending expos, exhibitions, events, everything. Don't stop, don't limit yourself. Don't sit in a comfort zone. कि नहीं यार तो वीकेंड है, सैटरडे संडे, कितने लोगों को मजा आता है? आप लोगों को अभी से मजा आता है, बोले आज क्लियर काम करके चल रहे हैं आज वो भी क्वेश्चन है, अरे नहीं अटेंड करने का नाम बोल रहा है. Don't do this. Every time, every minute, every hour, of course entertainment you need. मैं भी enjoy करता हूँ मैं फ्री टाइम, ऐसा नहीं है लोग बोलेंगे यार सर तो पूरा enjoy करके आ गया तो हमको बता रहा है. I also enjoy my time. It's not like that. But when you time, because ये जो time बीत जाएगा ना ये वापस नहीं आएगा. This will never ever come. Time will never ever come. So you have to make the most. Use your time. Value internet. Use internet in the right way. Blog करो, लिखो, पढ़ो, learn. YouTube भी खोलोगे ना तो तुमको बहुत कहीं जाने की जरूरत नहीं है. YouTube पे शॉर्ट्स मत देखना. But my point is education, knowledge. मतलब there is plethora ocean. You will just dive in the ocean. I would say. सर आपका एक स्लाइड था अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज या करियर पाथ्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग. सर आप अगर ये सारे जो करियर्स है उसमें क्या सैलरी पैकेज होता है, क्या ग्रोथ होता है, स्टूडेंट्स को अगर उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा तो बेस्ट होगा. ये जितने भी मिशंस में लिखा हूँ दैट इज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग ओनली. और भी बहुत सारे बट दीज आर सम ऑफ द रेकग्नाइज्ड इन द इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड. सो इसका अगर मिनिमम पैकेज आप स्टार्ट करोगे एज फ्रेशर और इंटर्न आप कर लिए, सो आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया,
So minimum salary of 50,000 rupees per month you get from From 50,000 per month in each of these categories. each of these categories, and then sky is the limit. Okay. Then if you go to probably, you are a data analyst, you go to UK, US, Canada, even in the GCC countries, your minimum package will start from, $1.5 lakh, 2 lakh rupees per month. INR. So if you go abroad, then there is sky is the limit. There is no stopping. किसी को कोई और क्वेश्चन है, कुछ पूछना है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए? उन्होंने बीएमएस किया है तो बीएमएस में मार्केटिंग एलिमेंट आ जाता है, मार्केटिंग का सब्जेक्ट आ जाता है, एंड फिर उन्होंने मास्टर्स में एडवर्टाइजिंग किया तो वो सारा एक्सपीरियंस उन्हें हेल्प किया एंड टू आई गेस प्रोबेबली थिंक के आई शुड गेट इनटू डिजिटल मार्केटिंग। वैसे ही किसी को कुछ जानना है और कौन से कोर्सेज कर सकते हैं बीएमएस के अलावा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को कम परसेंटेज आए तो वो लोग क्या कुछ कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस क्या है, आप कुछ पॉसिबिलिटी है? You guys can do BSc IT, BSc Computer Science. ओके, सो बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस प्रोबेबली डेटा एनालिटिक्स में हेल्प Data करे। analytics में है, मतलब ये सारे ऑप्शंस ओपन है। ओके, इवन फॉर अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, कोई भी स्ट्रीम से आप हो, आप ये सारे डेजिग्नेशन, सारे रोल्स चूज करो, सारे प्रोफेशन चूज करो। डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट सब्जेक्ट टू, आई हैव सीन दैट डिजिटल मार्केटिंग लॉयर जो BA, LLB की स्टडीज कर रहे थे, दे हैव शिफ्टेड टू देयर करियर डायरेक्टली। So, people from pure engineering, IT background have shifted to directly digital marketing and advertising and those things. So there is no limitation, no percentage, no marks. Don't feel that यार मुझे 42% है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, not at all. ऑनलाइन फ्री कोर्सेज है जो आपने बताया, आप वो सब चीज़ें परस्यू कर सकते हो। Don't waste हाँ। your parents' hard money. Do as much as free courses. जब आपको लगा ना कि भाई मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकूँगी, then go for the kid. क्योंकि अगर फिर वही हो जाता है ना, people spend lakh and a half, then उन लोगों को लगता है इनको मज़ा नहीं आ रहा है, तो मज़ा नहीं आ रहा है, तो मज़ा क्या? Education is not enjoying. Education is for the knowledge. I always see students say यार मज़ा नहीं आ रहा है सर, मज़ा नहीं आ रहा, मैं डांस को भी कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। You have to, you have to take it or leave it. मज़ा आना, मज़ा नहीं आना, of course that is the part. You should enjoy whatever you are doing, but do it at very early age, not wasting your parents' hard earned money. सर 50,000 का आपने जो सैलरी दिया वो जनरली 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बाद स्टूडेंट, हाँ मतलब कोई भी पर्सन को वो मिल सकता है, उसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हो, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर में प्रॉबेबली सैटरडेज आर ऑन, सो यू आर कल हमारे वहाँ पे एक गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉय आए थे तो सब स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट बैंक कैसे चलते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, वो सब चीज़ें उनको काफ़ी पता चली। वैसे ही इसमें भी अगर आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो कि जनरली ये 50,000 में क्या सैलरी कॉम्पोनेंट होंगे या कुछ अलाउंसेस जैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, सैटरडेज भी वर्किंग होता है तो 10 आवर्स होता है, 12 आवर्स वर्किंग होता है थ्रू आउट द वीक, बेसिक उनको सिर्फ क्लैरिटी चाहिए प्राइवेट जॉब में मार्केटिंग। होम का जो कल्चर आ गया ना, वेरी इरिटेटिंग, देयर इज वेरी, आई वुड से इट इज स्पॉइलिंग द होल वर्किंग एथिक्स और कल्चर जो बोलते हैं ना, उसको पूरा स्पॉइल कर देते हैं। आज अगर मैं यहाँ नहीं होता ना, आई वॉज इन माई ऑफिस, नो वन कम्स, आई एम द ओनली वन, आई एम द बॉस, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर एंड फुल ऑफिस इज एम्प्टी, बिकॉज आई लाइक टू गो एवरी डे टू ऑफिस 9:30 शार्प। डिसिप्लिन लाना इज कंपल्सरी, वो एटीट्यूड छोड़ दो, लीव दैट एटीट्यूड कि आज संडे है, आज तो मैं 1 बजे उठूँगी, आज तो मैं 1 बजे उठूँगा, फॉरगेट एवरीथिंग। डिसिप्लिन जब तक की लाइफ में नहीं आएगा ना, आई हैव वन अवार्ड एंड एक्सेलेंस फॉर माई अटेंडेंस एंड फॉर माई डिसिप्लिन। इन माई MBA I won student of the year. Wow. It was not the
smartest of students, but for my discipline, for my extracurricular activities, for my, of course, my education I scored 77%. I was not the topper, but I won the Student of the Year award for my overall 360 degree performance in KC College. So, my whole point is discipline लाना जरूरी है. संडे को काम करूँगी, सैटरडे को काम नहीं करूँगी. You have to work as per the company, respect the company. मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ. I run a company now. I was working for the company, but I always used to tell my juniors, because respect the company who's paying you. Don't take undue advantage of them. हाँ ये भी नहीं कि मैं मजदूर हो जाऊँ. मजदूर नहीं हूँ. We are professionals. So we have to work like professionals. But you know, make the most of it. Respect the company. Please. So make the most of it. I think so. Work from office. कोई काम मिलता है. Work from home is not our need. So you know, वो दिमाग से निकाल दो कि work from home. Work from home is not our culture. Work from home is not professionalism. Work from office is work और वो ही actual work. Professionalism is for you. घर पे बैठे, you know, slaying around, lazing around. That is not. सर आई हैव अ क्वेश्चन. ऐसा बोला जाता है कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट. मतलब बोला गया है कि 50 का पैकेज मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है. बहुत जगह पे हमें जो बताया जाता है, जब हम वहाँ पे वर्क करते हैं तो हमको पता चलता है कि ऐसा नहीं है. क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन्स में भी पॉलिटिशियन की तरह लगा होता है, आके बोल गया. नहीं, ऐसा नहीं है. बट It's okay. ये मेरे साथ भी हो जाएगा. हाँ Yeah. Please carry on. हाँ, तो क्वेश्चन ये है जैसे कि इंजीनियरिंग में भी बच्चों को बताया जाता है कि इंजीनियरिंग कर लो, अच्छा खासा पैकेज मिलेगा आपको, ऐसा ऐसा है प्रॉफिट. बच्चे उसमें जाते हैं, करते हैं, बट एट द एंड उनको पता चलता है कि अरे इसमें तो इतनी सैलरी है. कुछ इंजीनियर्स हैं जो कि इंजीनियरिंग की डिग्री की है, बीटेक किए हैं, पैसा लगा के सब कुछ किया है, बट फिर भी वो छोटे मोटे काम करते हैं. तो मैं वही बोल रही हूँ कि हमें बताया कुछ और जाता है और होता कुछ और है. चाय वाला, ग्रेजुएट वाला, those are the examples you are giving, right? वो भी सही है आपकी बात, I'm not denying. But see, the thing is, this is all, I would say, dependent on your fortunes, your, I think so, the amount of knowledge you have. Okay, I have seen in my school career, in my college career, toppers of my batches are probably working in call centers, don't have jobs, not doing for jobs, toppers of my batches. So it happens, I'm not denying you. Expectation versus reality differentiation होता है. But one thing is for sure, which I always feel, hard work will never go in vain. Okay? Your hard work, whatever you do in any profession or any specialization, will never go in vain. I think so it is all about getting experience, doing more and more practice. जैसा मैंने बताया, the struggle is real. बाकी वो लोग she is right, but hard work will never. It will always pay you off, and you know it will come in flying colors. That is what I always feel. So वो जो बोल रहे हैं वो भी सही है. According to अभी जो current trend चल रहा है, अभी जो industry का मतलब हाल है और पूरा मतलब you know everything is imbalanced right now. But yeah, we can always pray for it, and you know everything will fall in place in future. And I don't think so. You know we should get carried away with this attitude कि मतलब you know negativity, always be positive और positivity. और किसी को कुछ क्वेश्चंस है? अभी तक सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसमें किसी को कुछ डाउट है? डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे बनाते हैं, क्या कुछ करना रहता है, किसी को कुछ पूछना है? सब लोग ने अभी 10th 12th दिया है, तो कोई स्ट्रीम के अराउंड कि ये स्ट्रीम में मैं गया तो मैं डिजिटल मार्केटिंग परस्यू कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, उसके अराउंड कुछ डाउट है? जोर से बोल. अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग करना हो तो उसे स्टार्ट कैसे करें? मतलब स्टार्ट कैसे करना है? आई थिंक सर ने बताया था फ्री कोर्सेज जो अलग अलग सर ने दिखाए थे. वो free courses वाला slide चालू करो. There are 10,000 of courses there online. I think so go through that.
डेटा साइंस के बारे में आपको नॉलेज है क्या? डेटा साइंस क्या आपको पता है क्या करना है? मतलब जो अभी रिसेंटली तो मेरा 12th हुआ था, मुझे डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो सर, बट मेरे पास मैथ्स नहीं था, तो मैं अकबर पीर भाई कॉलेज गई थी, वहाँ पे पूछा मैंने डेटा साइंस के रिगार्डिंग, तो उन्होंने ऐसा लैंग्वेजेस बोले कि आपको लैंग्वेजेस स्किल्स आनी चाहिए आपको, लाइक जावा, पाइथन। करेक्ट, सो वो क्या होता है ना, दैट यू हैव टू टेक्निकल आपको नॉलेज चाहिए उसके बारे हाँ सर, वही वो टेक्निकल नॉलेज हम कहाँ से ले सकते हैं? सर यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस नहीं आते। ट्यूटोरियल्स पॉइंट नंबर 1, या तो आपको आपका जो प्रीवियस जो करियर, नाउ इन विच क्लास यू आर? 12, सो आपको फिर 10 से उसका पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए था फॉर गेटिंग नॉलेज ऑफ। बट एनीवेज, अगर आज भी आप हो तो ऑन गूगल देयर आर लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स, ये साइड पे आपको मिल जाएंगे 1000 ट्यूटोरियल्स। फॉरगेट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, फॉर डेटा साइंस रिलेटेड, पाइथन, जावा, एवरीथिंग यू गेट। सर ये पाइथन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, ये कैसे यूज होता है डिजिटल मार्केटिंग के स्पेस में? नाउ एसईओ आपने समझाया कि एसईओ तो आपने ऐड को कैसे ऊपर तक किया है गूगल पे, ऊपर इस पे द वे यू give Google the money so that they can share the ad at a particular place. तो इसमें जावा पाइथन कैसे यूज में आता है? Basically, it's part of web development. ओके, So web development again is a part of digital marketing, करेक्ट, but it is not directly related to digital marketing. But हाँ, वेबसाइट जैसा मैंने बताया कि I have to rank my website on top. टॉप, So वेबसाइट का एक पार्ट होता है, which SEO का एक पार्ट होता है, which is on page and off page. ओके, So on page is basically the web development part where your Java, Python, any language has to be compatible with the web standards. जब भी आपकी वेबसाइट रैंक करे, करेक्ट, so इसीलिए वो कोडिंग वोडिंग का आप जो भी करो, एक्सपीरियंस काम में आता है। is necessary in digital. ओके, और तुझे कुछ डाउट था? सर एक डिफरेंस होता है डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस में, वो क्या है? मतलब वो दोनों यहाँ पे यूज़ हो सकता है या नहीं? दोनों सेम है कि क्या है? हाँ, जैसा मैंने बताया कि डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, सो दोनों के अंदर डिफरेंस यही है कि वन इज रिलेटेड टू probably fetching and structuring the data, और एक जो है डेटा एनालिटिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज अबाउट सॉर्टिंग डेटा। जो आपके पास जमा हो जाएगा डेटा, यू हैव टू सॉर्ट दैट, जैसा मैंने बताया इन डेमोग्राफिक्स, इन ज्योग्राफिक लोकेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो दैट इज पार्ट ऑफ दैट। आई हैव अ क्वेश्चन। आप थोड़े फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में शेयर कर सकते हो? बिकॉज सम गर्ल्स ओवर हियर, उनका कैसा है कि बाद में जाके शायद जॉब करने ना मिले या कुछ, तो घर पे बैठ के भी उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ और वर्क फ्रॉम होम फॉर द वंस हु आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड देयर हाउस फॉर वर्क? The thing is, right now, I am one of the companies which allows. I am doing, freelancing in Kashmir with the girls in Kashmir, which are not allowed to work there. Exactly. Internet, there is no calling. So right now, I am working with them also because I know they are in need of money. There is a very bad condition in Kashmir of people there. So the thing is, there are certain companies which do that. But right now, to be very honest, after the COVID is over, the work from home or freelancing has become very limited. Freelancing is still there because freelancing itself is like an independent profession. Work from home again has become limited. But yeah, we can work out on solutions. Yes. Where, because as said, I am also running an NGO, so that is part of an our activity where we give work to girls or anyone who Yes. wants to work from home or wants to freelance. That's it. फ्रीलांसिंग में उनको कौन से टाइप के जॉब मिल सकते हैं? वो लोग कौन से टाइप के प्रोफाइल पे काम करते हैं? These all whatever सारे एलिजिबल फॉर but freelancing mostly you have to apply out of India.
Okay. Because you get paid well because dollars में या यूरो में You get paid hourly. To be very honest, freelancing in India is very like मजदूर है. Sorry to use that word, but people try to choose from you lot of things. अच्छा freelancing उनको लगता है कि मैंने तो इसको खरीद लिया. So that is how the freelancing model works in India. I think so out of India it is pretty good and all girls can get benefits. सर आउट ऑफ इंडिया के लिए अगर इनको फ्रीलांसिंग जॉब्स उठाने हैं या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठाने हैं तो कौन से वेबसाइट्स या कौन से पोर्टल्स हैं? There are hundreds of websites. LinkedIn itself gives Okay. more than 100 opportunities are there on LinkedIn itself. Okay. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ start using LinkedIn right now. Make LinkedIn your weapon for your professional network, for your career, for your future freelance work, out of India work, because LinkedIn is the medium. Or when you can afford, you can take a premium version, which is, when you will earn in lakhs, you can pay those 2,700 rupees per month. और किसी को कुछ डाउट्स है अभी तक के सेशन में? Digital marketing is endless. यस. बेसिक अगर कुछ करना है फॉर इंटर्नशिप See, basic अगर करना है and you want a job, इंटर्नशिप अगर ये सब 10-12 में डायरेक्ट at least आप जो मैंने दिखाया आपको कितने सारे उसको कवर करने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा. Okay. Of course, सारे डॉक्यूमेंट्स कवर करने के लिए 1 year चाहिए. while studying while studying while studying Why study? You don't have to leave your study. आप बोलोगे चलो सैलरी बोल दिए यहाँ से भी डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग मुंबई सब पेट तो सब पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए ना भाई. तो कल मेरे भी आ जाएगा कंटिन्यू स्टडीज एवरीथिंग. सर हाँ चल रहा है. साथ में डिजिटल मार्केटिंग इट्स वर्किंग नहीं हमें लगा सर आपका माइक बंद हो गया. नहीं चल रहा है. तो स्टडीज के साथ में डिजिटल मार्केटिंग तो अभी जाके सब बैग देख के चलो संडे है so 1 year चाहिए minimum and of course practice extensive learning listening reading तो ही it will come. वरना if you think कि मैं खाली पढ़ लूँगी 4 लाइन आ गया मेरे को SEO सोशल मीडिया का जो लोग भी करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम वो अलग है for work and professionalism सोशल मीडिया. सर अभी स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट और कैनवा पे थोड़ा सा दे आर हैव स्टार्टेड टू वर्क. विच अदर AI टूल्स विल यू रेकमेंड के ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए वीडियो एडिटिंग के लिए फोटोशूट? I think so. Canva use करते हो, which is now it is good. ChatGPT, try ChatGPT free वाला version. बट ChatGPT पे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं? Graphic कर सकते हैं. Okay. Video editing करना, video editing का help करना, तो take Midjourney, Canva पे होता है video editing. Yes. Canva has that. Anyone wants अगर किसी को really interested है Canva में wants to pursue the career, I can give them my paid account, premium account access also. So I am open to that. Given to many, I can give to you guys. So if you really want to do something in video editing, image editing, so I am open to that. एंड आपने कहा मिड जर्नी. Midjourney is again very good for creating designs, creating videos, creating visuals. एंड जनरली इवन इन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज मतलब जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज चलाते हैं वहाँ पे वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है. जिनको ग्राफिक डिज़ाइनर बनना हो वीडियो एडिटिंग बहुत पसंद है वो भी एक अलग पोस्ट है. सर ने जो 6-7 पोस्ट मेंशन किए वो सिर्फ मार्केटिंग के एस्पेक्ट पे था बट हर एक एजेंसी में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वीडियो एडिटिंग भी होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर भी इन हाउस होता है जो अलग अलग इमेजेस बनाते हैं जो सोशल मीडिया में पोस्ट होते हैं या यूट्यूब पे पोस्ट होता है बिजनेसेस जो पोस्ट करते हैं. करेक्ट? Absolutely, he is absolutely right. Yeah. एंड व्हाट अबाउट ऑनलाइन कोर्सेज अभी ये लोग ये करेंगे तो हायरिंग में कुछ सर्टिफिकेट दिखाना है कि कुछ भी कि ये ऑनलाइन कोर्सेज के बेसिस पे These online courses are very certificate फ्री वन आल्सो free ones also. बट दैट इज वैलिड व्हेन आई गो फॉर अ Of जॉब. course. They are all certified. Google भी देता है. Google gives free courses plus certification also. तो पूरा online है. उसको सब कुछ चेक करके रखना है.
सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में जनरली सैलरी पैकेज कहाँ से शुरुआत होती है? उसमें भी 50,000? हाँ, क्योंकि उसमें फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटीज बहुत वास्ट है। Freelancing opportunities is the maximum. Yes. Apart from that, it is all about your skills. आज ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने देखा हूँ जो to be very honest, जो 10 साल भी आज they are still at that प्रोग्रेस का स्पीड। और आज तो 1-2 साल में भी I have seen 18-20 डिजाइन एक दिन में बना देते हैं। So it is about your precision, about your designing skills, creativity को कितने हो, कितना कम तुम्हारे सीनियर्स और तुम्हारे मैनेजर्स और टीएल्स को तुम्हारे पीछे दिमाग लगाना पड़ रहा है और you can by I will do it. But for any fresher, what would be the starting salary in general? Starting salary पकड़ लो 15,000, 15. और डिजाइनर और वीडियो और वीडियो एडिटिंग में आपको अगर मोशन ग्राफिक्स 2D 3D ये आ गया तो फिर तो हो गया है उससे घर पे बैठ के So starting salary is 15,000. 15,000 And for other digital marketing related जो post सर ने बताया SEO expert, PAP पेपर क्लिक PPC क्लिक expert, उनमें I think 50,000 का start off मिलता है। Yes, sir, we can continue. ये ये सारा हो जाएगा हाँ, आई थिंक सास मुझे नहीं उनको नहीं लगे, तो नहीं समझ में आएगा। अभी बोलेगा अभी अगली बार से So yeah, this question to everyone, what do you like about the session most? क्या पसंद आया आपको? What topic you like? Actually मैं यहाँ पे AC नहीं है, अगर यहाँ पे AC होता ना तो मैं शाम तक को बैठ जाता। सॉरी सर। I'm so मतलब yeah. वरना अगर AC होता तो शाम तक आप मेरे को यहाँ पे भगा भी देते तो मैं हिला नहीं। I would have stopped on and on, but right now I'm so exhausted. यस सॉरी सर। Anyone has any which you like about this or which you like to implement or moving forward? Yeah, please. पूरे सेशन में मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोर इट, वर्क ऑन इट, देन फाइंड कि आपको वो जम रहा है कि नहीं। अगर वो आपको लग रहा है कि आपके लिए है, देन यू कैन गो फॉर दैट, अदरवाइज टाइम पास। तो ये मुझे अच्छा लगा कि पहले खुद जानो, उसमें काम करके थोड़ा दिन ऐसा। Good. Or anyone else? Photo speak up. Don't शर्माओ मत. Nothing is stupid or idiotic. 3 Idiots देखा? Idiot is a new thing. बोलो. Speak up. ऐसा कुछ बंद बोलो तो सब हंसेंगे. Nothing is like that. अरे आप बोल लो. 42%. हाँ, सब बहुत डरो मत, बोलो बिंदास। मस्ती तो करते हैं ना कभी। टीचर वहाँ पढ़ाती है तो पीछे सब मस्ती करते ही है। Do that right now. Yeah, please. जी। अच्छा है, मेरे क्लाइंट भी यही होते हैं। मैं उनको बताता हूँ see, invest in digital marketing. So they also tell me the same. Anyone else? Okay then. I wish you good luck everyone. और जैसा मैंने बताया in terms of ट्विंकल मैम और विजिट सर के सामने भी बता रहा हूँ ऑफिस से कि any help, any guidance कुछ भी चाहिए, I'm always open. You can take my number from them. You can connect me on LinkedIn. There are hundreds and thousands of students with whom I interact. Within 24 hours, you get my reply. That is for sure. I'm very spontaneous and very quick in replying to clients. So, yeah, my students, my colleagues, everyone. So, you will get a reply from me. I'm always available 24/7. Okay? And 366 days, which is the new one. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Pleasure.